ପିଲାମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ଆମର କୋଉ ଯାଏଁ ପଢା ଯାଇଥିଲା ଡିସ୍କଭରି ଅଫ ଦ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ नहीं तापर तुमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रो चार्ज तार मास केते तार सिंबल कोन सेडा सब तुम मानक सहित मैं डिस्कस कर देइथिली पिला माने टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गोटे क्वेश्चन तापर डिस्कशन पूर्व गोटे क्वेश्चन देबी आई विल गिव यू ए क्वेश्चन पिला माने गोटे क्वेश्चन करो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर टुडेस क्लास व्हाट इज द order of mass what is the order of mass of electron, proton and neutron. What is the order of the mass of electron, proton and neutron? Electron, proton और न्यूट्रॉन के मास के हिसाब से उसका ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा मास किसका होगा? मास ऑफ द न्यूट्रॉन देन होगा मास किसका? प्रोटॉन सबसे मास किसका कम होगा? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. This is the order of the mass. Okay. Then student, order of the specific charge. Order of specific charge. Order of specific charge. So order of specific charge of electron, proton and neutron. Student, what is specific charge? E by m. Charge by mass. Specific charge means charge by mass ratio. Charge divided by mass, it is called as your what? Specific charge. The specific charge of electron. Electron का specific charge कितना होगा? E by m of electron is equals to how much? 1.76 into 10 to the power 8 coulomb per gram. Clear? Then E by m of your proton. E by m proton कितना आएगा बेटा? 9.58 into 10 to the power 4 coulomb per gram. 10 to the power 4 coulomb per gram. And what is the E by m ratio of the neutron? That is equal to 0. तो बेटा यहाँ पे ऑर्डर देखो किसका ज्यादा होगा E by m? इलेक्ट्रॉन का, देन प्रोटॉन का, देन न्यूट्रॉन का. क्लियर? So E by m of the electron will be more than that of the E by m that of the proton than that of the E by m of the neutron. Clear हुआ? Student clear? Yes sir. Yes sir. Okay. So this is all about your different types of particles. Student, you know about your radioactivity, that is your alpha ray, beta ray and gamma ray. We will study about in the nuclear chemistry, but कुछ क्वेश्चन आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, इसलिए मैं उसको बोलूंगा यहाँ पे. You know alpha ray, beta ray and gamma ray. अल्फा रे क्या होता है, बीटा रे क्या होता है, गामा रे क्या होता है? लिखो अल्फा रे. Write down alpha ray. What is your alpha ray? Alpha ray consists of alpha particles. Alpha ray consists of alpha particles carrying 2 unit of positive charge and 4 unit of atomic mass. So alpha particle को हम लिखते हैं हीलियम 42, जिसके अंदर 4 क्या होता है? 4 यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास होता है और 2 यूनिट्स ऑफ चार्ज होता है. डियर स्टूडेंट्स, 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज. बेटा समझ में आ रहा है सबको? 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो एक्चुअली इट इज द हीलियम न्यूक्लियस. ओके, क्लियर बेटा? इसको हम हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं. अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं. So alpha ray consists of alpha particles carrying 2 units of positive charge and 4 units of atomic mass, जिसको हम बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस. Okay, then your beta ray. What about your beta ray? Beta ray क्या होता है बेटा? These rays consist of negatively charged particles similar to electrons. बीटा रे जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कैरी करते हैं सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन जैसा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को कैरी करते हैं. इसलिए हम बीटा
जो रे है उसके अंदर जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लिखते हैं E0 minus 1. E0 minus 1 consists of this ray consists of negatively charged, negatively, mute yourself, negatively, students mute yourself, creating voice, consists of negatively charged particles. What? Subram Jyoti beta. Consist of negatively charged particles. Consist of negatively charged particles similar to that of the electron. Similar to that of electron. Sorry. Similar to that of electron. Clear students? इसको क्लीन करें. Write down gamma ray. Write down here beta gamma ray. So what is about your gamma ray? These rays do not consist of particles. These rays do not consist of particles. They don't consist of particles. उसके अंदर कोई भी particles नहीं होते हैं. They do not consist of particles. They do not consist of particles. So gamma ray don't consist of particles. These are neutral electromagnetic radiation. लिखो. These are neutral. These are neutral electromagnetic radiation. These are neutral electromagnetic radiation. बेटा क्लियर हुआ सबका? अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे में जितना भी डाउट था क्लियर हुआ क्या? और जो भी डाउट है वो आपका रेडियो एक्टिव केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री वहां पे इसके बारे में ज्यादा लिखा गया है, वहां पे डिस्कस करेंगे. क्लियर? यस सर. तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैंने क्यों इस चीज को एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोला, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे. बेटा क्वेश्चन को किसी ने फाइंड आउट किया है? बुक के अंदर पूछता है. हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर ये क्वेश्चन आता है. सो पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे. तो बेटा किसका होता है ज्यादा पेनिट्रेशन पावर? गामा रे का. देन दैट ऑफ बीटा रे, देन दैट ऑफ अल्फा रे. क्लियर बेटा? तो किसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा? गामा रे का, देन दैट ऑफ योर बीटा रे, देन दैट ऑफ योर अल्फा रे. सबको क्लियर हुआ? यस सर. ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा. नेक्स्ट चलो. नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक मॉडल्स में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक मॉडल. उससे पहले और एक चीज है यहाँ पे. ओके, और एक चीज है, एक फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर. तो बेटा उस चीज को भी ध्यान पे रख के लिख लो. कैसे आपका एक एटम का रेडियस एटॉमिक मास नंबर के साथ रिलेटेड है. क्या बोला मैंने? एटॉमिक रेडियस, एक एटम का जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, हाउ इट इज रिलेटेड, हाउ इट इज रिलेटेड टू मास नंबर, हाउ इट इज रिलेटेड टू एटॉमिक मास नंबर. क्लियर हुआ सबको? हाउ इट इज रिलेटेड टू एटॉमिक मास नंबर. ओके, सो एटॉमिक रेडियस, हाउ इट इज रिलेटेड टू एटॉमिक मास नंबर. कैसे ये एटॉमिक मास नंबर से रिलेटेड है. क्लियर? तो देखो बेटा, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आप लोगों को याद रखना है. दैट इज द, सॉरी यहाँ पे एटॉमिक रेडियस नहीं, यहाँ पे लिखो न्यूक्लियर रेडियस. न्यूक्लियर रेडियस, एटॉमिक रेडियस बाद में बताएंगे, वो बोर कॉन्सेप्ट में है. दिस इज योर न्यूक्लियर रेडियस. दिस इज योर न्यूक्लियर रेडियस, मतलब न्यूक्लियस का रेडियस, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस के साथ कैसे मास नंबर रिलेटेड है. सो इफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज r, then it is equals to r naught into a to the power 1 by 3. R is equal to r naught into a to the power 1 by 3. Okay, so what is your r here? What is your r, small r? That is the radius of the nucleus. Write down radius of the nucleus of an atom. Radius of the nucleus of an atom. And what is about your r naught? What is your r naught? constant. Okay,
No, it is not Rydberg constant. It is simply a constant whose value is 1.4 into 10 to the power minus 15 meter. Rydberg constant is written like this, RH. That is called as your Rydberg constant. Okay, 1096788 सेंटीमीटर इनवर्स. Okay, Rydberg constant को उस तरीके से लिखा जाता है. Okay, that is not Rydberg constant beta. It is your just simply a constant whose value is 1.4 into 10 to the power minus 15 meter. Clear? And what is your A? What is your A? This is your atomic mass number. This is your atomic mass number. तो यदि atomic mass number दिया जाता है तो उसका क्यूब रूट लेना है हमें. उस क्यूब रूट को R0 के साथ मल्टीप्लाई करके you can say the radius. Clear? अरे समझ में आया? सर फिर से थोड़ा समझा दीजिए. समझना ये है कि यदि तुम्हें कोई मास नंबर दिया गया है, मान लो तुम्हें मास नंबर कितना दिया है, मान लो एक नंबर लेता हूं जिसका क्यूब रूट इजीली निकल जाएगा. मान लो तुम्हें दिया गया है 27, ये तुम्हारा मास नंबर है. एटॉमिक मास नंबर ये तुम्हें दिया गया है 27, दैट इज योर ए. तो तुम्हें बोला गया है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कितना होगा? तो तुम्हें ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है. R इज इक्वल टू R0 इंटू ए टू द पावर 1/3. R0 का वैल्यू हो गया 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर. सॉरी 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर. तो यहाँ पे लिखना है 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इंटू एटॉमिक मास नंबर का वैल्यू हो गया है तुम्हारा यहाँ पे 27. तो 27 टू द पावर 1/3 उसका क्यूब रूट. तो 27 का क्यूब रूट कितना होगा? 3. 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3. ओके, सो 1.4 इंटू 3 कितना आ जाएगा बेटा? अरे आएगा ना इतना? यस सर. लेकिन 1.4 हाँ, व्यस्त होने की इतना जरूरत नहीं है. सिंपली सर हाँ बाको 10 to the power minus 5 ना 15 5 लिखा है जो 5 1 सॉरी 10 to the minus 15. हाँ कैलकुलेशन. चलो 10 to the minus 15 into 3 4.2 into 10 to the power minus 15 एतिक आछि तो? Yes, एतिक आछि ना नहीं? So that Yes, much. sir. Okay, that much. Clear? बेटा इस तरीके से करना होगा. न्यूक्लियस का रेडियस इस तरीके से निकालना होगा. ये फॉर्मूला है. इस फॉर्मूला को मास नंबर दिया जाएगा. मास नंबर से उसका क्यूब रूट निकाल के R0 के साथ मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट योर रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस. क्लियर? सर R0 रे सब बेले ए वैल्यूटा पका हबो. हां, इट इज ए कांस्टेंट. ओके बेटा, R0 इज ए कांस्टेंट 1.4 into 10 to the power minus 15 मीटर. खाली चेंज हो जाता और मास नंबरटा चेंज हो. बुझी पालु? यस सर. चलो नेक्स्ट इज योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक मॉडल. ओके, ये तो थिला सब एटम्स मान ऊपर कथबार्ता किंतु तापर विभिन्न प्रकार साइंटिस्ट माने आसिले जो माने कि विभिन्न प्रकार एटॉमिक स्ट्रक्चर सब मॉडल गुडा देले. एटमटा देखियो केमितिया सेंसो मॉडल गुडा देले. तो से मॉडल भीतर किछटा मॉडल को अप्रिशिएट करा जाइतला. तो से मॉडल गुडा को हमें डिस्कस करियो जो गुडा कि तुम सिलेबस रे दिया जाइछि. तो पिला माने फर्स्ट यहां पे आपका एक फर्स्ट मॉडल आता है जिसको हम बोलते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम. थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम. बेटा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल को कौन सा मॉडल बोला जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल. वाटरमेलन मॉडल. वाटरमेलन मॉडल. वेरी गुड. ओके, तो जे थॉमसन इन 1898, वो इतना इंपोर्टेंट नहीं है. 1898 he proposed the model of the atom which looked more or less like that of your plum pudding. ओके, प्लम पुडिंग जैसा दिखता था. प्लम पुडिंग मतलब मान लो कोई केक मान लो. केक के ऊपर जैसे आपका ड्राई फ्रूट्स पड़ा होता है ना, जैसे ड्राई फ्रूट्स गिरा होता है वहां पे, उसी तरीके से उन्होंने बोला एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट उसी तरीके से हुआ है. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ही अज्यूम दैट एटम टू बी ए स्फेरिकल बॉडी. जो एटम है वो एक स्फेरिकल बॉडी है. इस तरीके से कोई एक स्फेरिकल बॉडी है, दैट इज एटम. सो एटम इज ए स्फेरिकल बॉडी. ओके, सो उन्होंने बोला ये एक टोटल मेरा एटम है इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. क्या बोला मैंने? द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्फीयर हैविंग पॉजिटिव चार्ज. मान लो ये तुम्हारा एक स्फीयर है जिसके ऊपर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है. सो
इट इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। ये स्फीयर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है और इस स्फीयर के अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑन इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, 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 इस तरीके से। समझ रहे हो बेटा? ओके, so this is called as your plum pudding model. This is called as your plum pudding model. Simple concept, इतना ही है। तो प्लम पुडिंग जैसा दिखता है वैसा हमारा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट भी उसी तरह से दिखता है। तो उन्होंने बोला एटम एक स्फीयर जैसा है। मान लो कोई पॉजिटिव स्फेरिकल बॉडी है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, उनको बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ थॉमसन। क्लियर? यस सर। तो इसका ड्रॉबैक क्या था? व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ योर जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल? ओके, तो जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल कब उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया? जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जब रदरफोर्ड ने अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पे उनको कुछ अलग तरीके से एटम का अरेंजमेंट दिखने को लगा। ठीक है, तो इसीलिए पूरा मान लिया गया कि जो थॉमसन ने बोला था कि प्लम पुडिंग जैसा हमारा एटम के अंदर अरेंजमेंट होता है, वैसे नहीं है। और वो दूसरा ये भी था कि जे थॉमसन ने कोई भी एक्सपेरिमेंटल डाटा वहां पे नहीं दिया था इसको प्रूफ करने के लिए। जस्ट एक थ्योरेटिकली उन्होंने बोल दिया कि हाँ एटम ऐसा होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जस्ट लाइक योर प्लम एंड पुडिंग। लेकिन उसके लिए उनके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड जो चीज को किए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके वो बोला था। ठीक है, तो इसीलिए उनका बात को ज्यादा अप्रिशिएट किया गया और जे थॉमसन को वहां पे छोड़ दिया गया। ओके, क्योंकि वो थोड़ा डेवलप्ड मॉडल था रदरफोर्ड का। Clear बेटा? So that is about your the drawbacks of your J.J. Thomson's atomic model. Next come to your Rutherford's atomic model. Next come to your Rutherford's atomic model. Rutherford's atomic model भी बोलते हैं कि न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। Rutherford's न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, इसको ऐसे भी बोला जाता है Rutherford's न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। तो बेटा Rutherford's न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कैसा था? क्या था वो न्यूक्लियर मॉडल? ओके, तो इसको यदि अच्छा होता मैंने कोई पिक्चर यहाँ पे शेयर कर दिया होता तुम्हारे को। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा रफली बोल देता हूँ। देखो, तो उन्होंने क्या किया इन दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड अलाउड ए नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अभी अभी हमने पढ़ा अल्फा पार्टिकल के बारे में, हीलियम न्यूक्लियस होता है वो। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का एक नैरो बीम को उन्होंने क्या किया? वेरी थीन गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने लेके उसको स्ट्राइक करवाया। समझ रही हो? पूरा एकदम नैरो बीम को अल्फा पार्टिकल का लेके वेरी थीन गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने स्ट्राइक करवाया। ओके, सो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस, जो कि 4 यूनिट ऑफ मास कैरी करता है और 2 यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। वो पॉजिटिव चार्ज जब वो रे जब जाता है उसका बिहेवियर के हिसाब से उन्होंने अंदाज लगाया कि हाँ एटम के अंदर इस तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? मान लो यहाँ पे उन्होंने ले लिया एक बॉक्स, चारकोल बॉक्स। तो चारकोल बॉक्स के अंदर उन्होंने ले लिया यहाँ पे हीलियम न्यूक्लियस को, और हीलियम न्यूक्लियस से हमारे यहाँ पे निकल रहा है क्या? अल्फा रेज। तो दीज आर योर अल्फा रेज। तो अल्फा रेज को उन्होंने लिया यहाँ पे, इधर यहाँ पे लेके यहाँ पे गोल्ड फॉइल उन्होंने रख दिया, थीन गोल्ड फॉइल लेके उन्होंने रख दिया और उसको एमिट करवाया। मतलब वो रेडिएशन एमिट हो रहा है, वहां यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है, वो यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहे हैं ये रेजन। ठीक है, तो जब ये स्ट्राइक करता है उसके हिसाब से उन्होंने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन लिखा वहां पे, एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत सारा ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा और उस ऑब्जर्वेशन से बहुत सारे कंक्लूजन भी निकाले और उस कंक्लूजन को आज हम पढ़ रहे हैं। क्लियर बेटा? एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट समझ में आया? ओके, एग्जाम के अंदर तुम्हारे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टोटली इंपोर्टेंट नहीं है, सिंपली ऑब्जर्वेशन याद रखना है और कंक्लूजन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। क्लियर? तो 11 से यही पढ़ के आ रहे हो, 11 से यही पढ़ के आ रहे हो कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल से एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उसका ऑब्जर्वेशन और यदि मैं कंक्लूजन पूछूं, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस दैट बहुत सारे स्टूडेंट का वो कंक्लूजन नहीं याद रहेगा।
वो बोल नहीं पाएंगे एक्सप्लेन करके उस चीज को। ऑब्जर्वेशन क्या था और उसका कंक्लूजन क्या होगा मैं पूछूंगा भी अभी, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज है। ये आप लोग ऑलरेडी थ्योरी पढ़ पढ़ के आ रहे हो 11 से, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ पूछूंगा भी। बेटा दिखाई दे रहा है तो शेयरिंग? यस सर। हाँ देखो बेटा, तो ऑब्जर्वेशन में पहला ऑब्जर्वेशन उनको मिला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, लिखो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, most of the alpha particle passed through the foil, passed through the foil, most of the alpha particle passed through the foil, passed through the foil without any deflection, without any deflection, without any deflection. Most of the alpha particle pass through the coil without deflection. तो मेरे को बोलो उनको जो ये ऑब्जर्वेशन मिला एक्सपेरिमेंट से उसका कंक्लूजन क्या था? व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन? So there is a large space inside an atom. Yes. Large empty spaces inside a Yes, very good. Large empty space inside an atom. क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो हैं वो क्या करते हैं? पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। बेटा डिफ्लेक्शन कब होता है? जब आप कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन लेके सामने रख देते हो तो वहां पे ये रह जाता है और वहां पे स्ट्राइक करके फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसको ही बोलते हैं ना डिफ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन मान लो कोई रे यदि इधर जा रहा है सीधा 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 सीधा, कोई भी उसमें डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा, तो उसका मतलब क्या है? उसका सामने कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? उसके सामने कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा है, तो वो बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल कोई भी डिफ्लेक्शन के बिना एकदम पास करके चले गए गोल्ड फॉइल को। तो उसका मतलब ये है कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस, प्रेजेंस ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेस, प्रेजेंस ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेस इन द एटम। एटम के अंदर बहुत लार्ज स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। समझ में आ रहा है सबको? सेकेंड ऑब्जर्वेशन में आते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या बोला गया बेटा? few of the alpha particles, few alpha particles were deflected by few alpha particles were deflected by small angle, छोटे से एंगल में, एक्यूट एंगल के अंदर उन्होंने डिफ्लेक्शन शो किया। तो उसका कंक्लूजन क्या जाता है? positively charged particle. Okay, only that much, और कोई नहीं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ओनली और नथिंग एल्स? सिंपल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और उसके अलावा और कुछ भी नहीं। So the electrons. नो ठीक बोला, खाली ठीक बोला तुमने, लेकिन और थोड़ा चीज तुम्हें ऐड करना था वहां पे। देखो, पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट ए वेरी स्मॉल रीजन। बेटा पहले समझो, इसको रखने से अच्छा है कि समझ लो थोड़ा कि वो क्या बोल रहा है। फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। समझ रहे हो? छोटे बहुत मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे एंगल से उन्होंने डिफ्लेक्ट किया। ओके, तो ये डिफ्लेक्ट करेगा कब? ये एक रे है जो कि पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, तो यदि उसके सामने दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वहां पे रिपल्सन होगा या नहीं? वहां पे रिपल्सन होगा या नहीं? ठीक है, तो वो बोल रहा है कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम जगह के अंदर है, इसलिए तो कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। समझ रहे हो? यदि वो बहुत ही बड़ा होता तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। क्यों ऐसा बोला गया है कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड? ओके, उसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज लिखो, कंक्लूजन को लिखो, positive charge is concentrated, positive charge is concentrated, positive charge is concentrated at a very small region, at a very small region, positive charge concentrated at a very small region and not uniformly distributed in whole of the atom, and not distributed uniformly, and not distributed uniformly in the atom, uniformly
इन द एटम। बेटा यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर रहा हूं थोड़ा, यूनिफॉर्मली इन द एटम लिखो, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द एटम। क्लियर हुआ? यस सर। समझ में आया सबको? सेकेंड नंबर जो हमें ऑब्जर्वेशन मिला उसका कंक्लूजन क्या हुआ? राइट डाउन द ऑब्जर्व। हाँ कह दियो। सर जो स्मॉल एंगल देछि सेटार किछि कंक्लूजन नाही। नो। ओके, सिंपली पॉजिटिव चार्ज ता छोटो जगह रे अछि। या पर जो कांसेप्ट कहि हबो या पर जो ऑब्जर्वेशन मो कहूची सेटा कहला पर जानि बुझे स्मॉल एंगल काहे कि लार्ज एंगल काहे कि हैं बस तो देख लास्ट ऑब्जर्वेशन लिखा गया। देखो ऑब्जर्वेशन जो रहला तमर 3 नंबर ऑब्जर्वेशन, सो थर्ड नंबर ऑब्जर्वेशन से कौन कहूची? very few alpha particles rebounded completely. Very few alpha particles. Very few alpha particles. देखो very few alpha particles rebounded completely. कौन कहला? Rebounded completely. ओके मतलब वहां पे डिफ्लेक्शन कितने एंगल से बना? 180 डिग्री 180 डिग्री रे। ओके सो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंडेड कंप्लीटली। बेटा रिबाउंड माने कौन? रिबाउंड का मतलब क्या है? कोई भी बॉल जो मान लो पाथरे जाइतो सेही पाथरे, यस जो पाथ रे जाइथिबो सेही पाथ रे पुनी बैक करी चली आसीबो। माने करे एटी गोटे अल्फा रे गला, मान लो ये अल्फा रे आपका इस तरह से जा रहा है, वो जाके जब स्ट्राइक करेगा, मान लो ये एटम है तो इसके साथ स्ट्राइक करने के बाद फिर उसी ही पाथ में ऑपोजिट डायरेक्शन में वो लौट आएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज द रिबाउंडिंग कांसेप्ट। तो यहाँ पे रिबाउंड हो रहा है, आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे कोलिजन में, ठीक है? तो ये टोटली रिबाउंड कर रहा है। और पता है ये कितना नंबर है इस तरह से अल्फा पार्टिकल का? आई थिंक ये जो दिया गया है डाटा उसके हिसाब से 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स रिबाउंडेड कंप्लीटली बाय द एंगल 180 डिग्री। ओके तो इसका मतलब है कोई भी पॉजिटिवली चार्ज कोर है, इसका कंक्लूजन ये है कि न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज कोर है। लिखो यहाँ पे देयर इज ए positively charged center. There is a positively charged center inside the atom. There is a positively charged center inside the atom called as nucleus. Called as nucleus. बेटा सबको समझ में आया? यस सर। देखो तो उन्होंने क्या बोला कि जो जब ये अल्फा रे जा रहा है, रुको थोड़ा मैं इसको क्लीन कर देता हूं। मान लो तुम्हारा ये एटम है, तुम्हारा ये गोल्ड का एटम है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो अल्फा रे जाके किसको स्ट्राइक कर रहा है? एटम होंगे। अल्फा मतलब जो गोल्ड फॉइल जो है उसके अंदर गोल्ड का एटम तो होगा ना, समझ रहे हो? तो मान लो ये तुम्हारा गोल्ड एटम है और गोल्ड एटम के अंदर ये है तुम्हारा न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस। तो दिस इज योर न्यूक्लियस, ये है तुम्हारा गोल्ड का एटम। तो जब ये अल्फा रे जाता है, जब ये अल्फा रे मान लो जो अल्फा रे इस तरह से जाएगा वो क्या करेगा? कंप्लीटली पास करके चला जाएगा। अरे चला जाएगा या नहीं? यस सर। Yes, sir. जो अल्फा रे एकदम सीधा जाएगा और जाके इसके साथ हेड ऑन कोलिजन करेगा। क्या करेगा? हेड ऑन कोलिजन। ओके जब यहाँ पे जाके हेड ऑन कोलिजन होगा इस न्यूक्लियस के साथ, इट विल रिबाउंडेड कंप्लीटली। बेटा माइक म्यूट कर, माइक म्यूट। तो जो यहाँ पे जाके डायरेक्टली हेड ऑन कोलिजन करेगा न्यूक्लियस के साथ, वो रिबाउंड करेगा कंप्लीटली। समझ रहे हो? और जो अल्फा रे यहाँ पे इस तरह से जा रहा है, मान लो कोई अल्फा रे इस तरह से जा रहा है और जाके यहाँ पे स्ट्राइक किया न्यूक्लियस का, जब यहाँ पे जाके स्ट्राइक करता है न्यूक्लियस का, तो वहां पे क्या होगा? इसका क्या बनेगा? इसका डिफ्लेक्शन, छोटे से एंगल से उसका डिफ्लेक्शन। अरे बुझिलू इप्सिता? Sir, electron से टकराएगा। यस सर। इलेक्ट्रॉन नेचर हम पे कहले इलेक्ट्रॉन टा हमरो से जाय ऑन ये कोन ये जो देइथले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल
से एटॉमिक मॉडल से इलेक्ट्रॉन विषय किसी जिंस से डिस्कशन कलेनी बुझी पालु ना नहीं तो Yes, एटा sir. हम जो डिस्कस करूचे तांकर एक्सपेरिमेंट रो ऑब्जर्वेशन टा डिस्कस करूचे बुझी पारछु ना नहीं से काहे कि इलेक्ट्रॉन विषय किछि कहलेनी हमें भी जानने बुझी पारछु ना नहीं से कोन Yes, एक्सपेरिमेंट sir. करले से केवल न्यूक्लियस विषय हमको जहां डाटा देथिले हमें ताको डिस्कशन करूचे बुझी पारछु तो से हमको डिफ्लेक्शन विषय कहिथिले हम से डिफ्लेक्शन टा काहे कि होछि ताको एनालाइज करूचे बुझी पारलु तो दिस Yes, इज योर sir. विथ ए स्मॉल एंगल और जोटा जाके डायरेक्टली तुम्हारा न्यूक्लियस से हेड ऑन कोलिजन करूचे दैट विल रिबाउंड विथ योर एंगल 180 डिग्री बुझियाला पिला माने बुझी पारलो रे गुडा कर नेचर बुझी पारलो Yes, sir. रे गुडा नेचर तो क्वेश्चन केवल सुनो या हला तमरो पाठ तमरो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रो या हला तमरो पढ़ा किंतु क्वेश्चन कोन आसीबो क्वेश्चन तुमको दे देथिबो एग्जाम रे जे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस स्टेटमेंट अबाउट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तो वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा उस 4 ऑप्शन बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड प्लीज म्यूट हाउ आई विल टेल यू इप्सिता Yes, sir. बेटा म्यूट कर माइक ऐसे डिस्टर्ब होगा तो बोलूंगा कैसे बेटा थोड़ा माइक को म्यूट करो कोई माइक ऑन म्यूट मत करना जब डाउट होगा एक ऑन म्यूट करेगा डाउट कंप्लीट होने के बाद पूछ लेने के बाद तुम्हारा माइक म्यूट वॉइस आ रहा है ना यदि वॉइस आता है मैं क्या बोलता हूँ फिर भूल जाता हूँ फिर बोलूंगा फिर वो पिक पकड़ना पड़ेगा एक बोलते हैं तो एक फ्लुएंसी होता है वो फ्लुएंसी ब्रेक हो जाएगा फिर इधर उधर हो जाएगा सब देखो डिस्टर्ब मत करो वो तुम्हारे दोस्त लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे जिसका बैकग्राउंड में वॉइस है वो म्यूट मत हो ओके ऑन म्यूट मत हो देखो ये म्यूट ऑन म्यूट दिमाग खराब कर दिया देखो तो तुम्हें इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से अंदर कि आपको ऑब्जर्वेशन दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा उसके कंक्लूजन के आपको एक कंक्लूजन जो करेक्ट कंक्लूजन है उसको उठाना है वहां पे और यहाँ पे क्वेश्चन आपको किस तरह से नहीं पूछा जाएगा सिंपल कंसेप्ट क्या क्वेश्चन आएगा वो भी बोल दिया अभी देखो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम से हमें क्या क्या फीचर्स मिला राइट डाउन द मेन फीचर्स of Rutherford atomic model main features of Rutherford atomic model what are the main features of Rutherford atomic model Rutherford के atomic models के main features क्या हैं पहला पॉइंट में लिखो क्या है उसका मेन फीचर न्यूक्लियस उन्होंने बहुत बड़ा बात बोला था न्यूक्लियस के बारे में किसी ने नहीं बोला था थॉमसन ने तो नहीं बोला था पहले उन्होंने आए थे वो आए थे एटॉमिक मॉडल को लेके तो उन्होंने कुछ नहीं बोला पहले ये आए रदरफोर्ड न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने कुछ बोला तो उन्होंने क्या बोला न्यूक्लियस के बारे में इन द एटम द मास एंड द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम द मास एंड पॉजिटिव चार्ज समझ रहे हो मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज सेंट्रली लोकेटेड in an extremely small region called as the nucleus क्या बोला मैंने inside the atom the mass and positive charge is centrally located in extremely small region called as nucleus सिंपल भाषा में समझे तो ये क्या बोल रहा है एटम के अंदर बहुत ही छोटे जगह में पॉजिटिवली चार्ज और मास का सेंटर है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस क्लियर Yes, sir. radius of the atom it is nearly equals to 10 to the power I think minus 10 meter yes 10 to the power minus 10 meter radius of the atom it is nearly equal to 10 to the power minus 10 meter and what is about the radius of the nucleus it is nearly about 10 to the power minus 15 meter radius of the atom 10 to the power minus 10 meter radius of the nucleus 10 to the power minus 15 meter are clear हुआ नेक्स्ट देखो योर पार्ट 2 ओके तुम्हारा दूसरा फीचर क्या है दैट इज योर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है बेटा The nucleus is surrounded by the resolving electron मतलब न्यूक्लियस के बाहर में जो है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट
तो बाहर में न्यूक्लियस का क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने बोला द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, so that is called as your extra nuclear part। समझ में आया सबको। तीसरा नंबर ऑफ फीचर, तीसरा फीचर क्या बोले थे, तीसरा फीचर बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, वो किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट, न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस बोला जाता है उसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला दो तो बोलते हैं हम न्यूक्लियंस। ओके, तो ये था तुम्हारा टोटल कंसेप्ट। ओके, तो उन्होंने रदरफोर्ड ने ये भी बोला कि उनका और भी एक फीचर था उनके मॉडल का कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रिजेंबल्स द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल रिजेंबल कर रहा था, जहां पे न्यूक्लियस प्लेज द रोल ऑफ द सन। सूर्य जैसा रोल कौन प्ले कर रहा था, कौन, न्यूक्लियस। एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिवॉल्विंग प्लैनेट्स, जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये था उनका फीचर्स। बेटा क्लियर में आया सब चीज? यस सर। बेटा अभी डिस्कस करते हैं व्हाट इज द ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक्स क्या है, तो उनका पहला ड्रॉबैक है स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। उनका पहला ड्रॉबैक ये है दैट इज योर स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। समझ रहे हो? तो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को मैं नोट दे दूंगा, इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टोटल नोट रहेगा एकदम फर्स्ट से लेके लास्ट तक चैप्टर का। ओके, तो वहां पे ये सब डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन यहाँ पे मैं समझा देता हूँ ओनली। जैसे कि मान लो यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियस है एटम के अंदर, और यहाँ पे तुम्हारा इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मान लो इस ऑर्बिट में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिवली चार्ज होता है और जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो दोनों के अंदर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या नहीं, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यस सर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। जब ये न्यूक्लियर फोर्स से घूमता है तो बेटा खुद सोचो, यदि तुम एक सर्कल में घूमते हो और तुम्हें कोई खींच के पकड़ा हुआ है सेंटर से, तो तुम्हारा एनर्जी वहां पे घटेगा या नहीं, धीरे धीरे तुम्हारा एनर्जी घटेगा या नहीं? यस सर। मतलब मान लो तुम्हें कोई खींच के रख रहा है और तुम मतलब उसके पास मत जाके घूम रहे हो, उसके चारों तरफ बाहर नहीं जा पा रहे हो, उसके अंदर ही घूम रहे हो। तो जितने टाइम तुम घूमते रहोगे तुम्हारा एनर्जी धीरे धीरे खत्म होगा या नहीं, और तुम धीरे धीरे कहाँ पे आ जाओगे, धीरे धीरे घूमते 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 सेंटर में आओगे, सेंटर में आ जाओगे। न्यूक्लियस मत बोलो, ये तो तुम्हारे बुक के अंदर भी लिखा गया है, पहले समझ लो थोड़ा। ये तो पढ़ पढ़ के 11 से आ रहे हो, लेकिन कुछ नया पढ़ो, कैसे उसको अप्रोच करो उस कंसेप्ट को, ठीक है बेटा? तो जब आप खुद सोचो, प्रैक्टिकली सोचो उस चीज को, मान लो तुम्हें कोई खींच के रख रहा है सेंटर से और तुम वहां पे सर्कुलर मोशन कर रहे हो, तो जब तुम्हें कोई अट्रैक्शन फोर्स से मतलब खींच के रखता है सेंटर से, तो धीरे धीरे तुम्हारा जो एनर्जी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है या नहीं, डिक्रीज हो जाएगा धीरे धीरे, और तुम धीरे धीरे घूमते 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 उसके पास आ जाओगे या नहीं, सेंटर के पास आ जाओगे या नहीं, समझ रहे हो? तो वैसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होता है उसके वजह से वो क्या करता है, धीरे धीरे इस पाथ से निकल के धीरे धीरे स्पाइरली मूवमेंट करके 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 करके, मैंने पिक्चर यहाँ पे ठीक से नहीं हो रहा है मेरा, लेकिन इस तरीके से आके डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर नष्ट हो जाएगा। अरे ठीक है या नहीं? कोलैप्स हो जाएगा। यस सर। कोलैप्स हो जाएगा। वो धीरे धीरे घूमते घूमते स्पाइरल पाथ में घूमते 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 आपके न्यूक्लियस के पास मिल जाएगा और वहां पे न्यूक्लियस तुम्हारा कोलैप्स हो जाएगा। तो बेटा यदि इस तरीके से होता तो क्या होता, मान लो तुमने घर में एक नया सा मोबाइल ला के रखा हुआ है, कल लाया है आईफोन 12 ला लिया, मान लो
आईफोन 12 ला लिया मैंने, यहाँ पे अपुल का लगा दिया, अपुल का पिक्चर है। तो अभी तुम सुबह लाके उसको पैकेट से खोल के रखे हुए हो, रात में सो गए एकदम खुश होके, ओके, लेकिन सुबह जब उठे तो वो फोन एकदम मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, समझ रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। क्यों? उसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बदल जाएगा। अरे यदि इस तरीके से न्यूक्लियस यदि कोलैप्स हो रहा है तो मतलब एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा? डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। अरे समझ रहे हो? Yes, हेलो, sir. यस सर। एटम का Yes, sir. स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा या नहीं? लेकिन ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है? No, तुम्हारा sir. No, एटम sir. ऐसे डिस्टॉर्टेड होता है? तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इस चीज को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो। तो एटम का ये जो स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड। तो ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस को कोलैप्स होने के लिए पता है कितना टाइम लगता है? यदि इस तरीके से अट्रैक्शन फोर्स को यदि कैलकुलेट किया जाता है और कैलकुलेट करते हैं टाइम को कि कितना टाइम के अंदर इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ मिल जाएगा, तो आई थिंक इट इज नियरली टेक 10⁻⁻8 सेकेंड। तो इतने कम टाइम के अंदर तुम्हारा न्यूक्लियस जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो सोचो यदि इस तरह से होता तो कोई भी चीज दुनिया में है वो मतलब सटीक से रह पाएगा? ओके, एटम तो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, तो ऐसे कोई चीज तो नहीं रह ही नहीं पाएगा। ओके, तो दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को रदरफोर्ड ने डिस्क्राइब नहीं कर पाया वो वहां पे। ओके, और दूसरा बात, जैसे कलीम ने पूछा सर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो सर वहां पे, तो सेकेंड थिंग था इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। सेकेंड ड्रॉबैक था इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किस तरीके से हुआ है उसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बोला था। उसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बोला था। ओके, तो सिंपली आप याद रखो एग्जाम के अंदर आपको इतना ही पूछेगा कि ड्रॉबैक क्या है रदरफोर्ड का, कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा, उस ऑप्शन से आपको सिलेक्ट करना है। तो इतना याद रखना, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इज स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एंड सेकंड वन इज योर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। क्लियर? +2 जैसा ये टोटल कंसेप्ट को रखने की कोई जरूरत नहीं है। एंट्रांस है, एंट्रांस के तरह पढ़ना है हमें, ठीक है। तो एंट्रांस में कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए Yes, नहीं sir. पूछा जाएगा। तो सिंपली कंसेप्ट को याद रखो, क्या बोला गया था, क्या उसका इंपोर्टेंट एक्सट्रैक्ट है, उसको याद रखो। प्रीवियस ईयर के अंदर रदरफोर्ड का क्या क्या क्वेश्चन आया था करवाएंगे, एक साथ पढ़ा के करवाएंगे क्वेश्चन। ओके, तो हमें सिंपली उतना ही करना है। खत्म हुआ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, तो Yes, यहाँ sir. पे आओ, थोड़ा इंपोर्टेंट चीज बताते हैं, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है? पहले हम एक एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, हम एक एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लो ये है हमारा एटम और उसका जो एटॉमिक नंबर है उसको हम कहाँ पे लिखते हैं? सबस्क्रिप्ट में, यहाँ पे लिखते हैं Z, और यहाँ पे लिखते हैं हम मास नंबर को। तो दिस इज योर A which is equal to your mass number and this is your Z that is your atomic number। क्लियर? अरे होता है या नहीं? Yes, sir. हाँ, पूरा Yes, sir. कंसेप्ट क्लियर के पढ़ो, एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं। मुझे मालूम है कि मतलब बच्चे जो भी हैं उनका स्टैंडर्ड कुछ भी हो, कोई हाई स्टैंडर्ड, एवरेज स्टैंडर्ड, लो स्टैंडर्ड, कोई भी बच्चा, मेरे को नहीं मालूम, मैंने तो देखा भी नहीं है मेरे स्टूडेंट कौन है, ऑनलाइन क्लास है किसी को मैंने देखा भी नहीं, चलिए नाम मालूम है। तो इसीलिए मैं जीरो से पढ़ा रहा हूँ, जो जानता है उसके लिए भी हेल्प होगा, जो नहीं जानता है उसके लिए भी हेल्प होगा। तो ट्राई करो अच्छे से रिजल्ट बनाने की। और हर बंदा जितना भी यहाँ पे क्लास कर रहे हो सब लोग, एग्जाम जो होगा केमिस्ट्री का, गिव इट सीरियसली। ओके, ये वीक के अंदर जो होना है हो जाएगा। एग्जाम के लिए मैंने क्वेश्चन थोड़ा नहीं दिया है वहां पे। ओके, तो वहां पे थोड़ा तुम्हारा अरेंजमेंट यदि क्वेश्चन इधर उधर से होगा तो चलेगा, क्योंकि तुम्हारा एक वीक क्लास बंद था इसलिए थोड़ा कोर्स पीछे जा गया है, तो इसलिए थोड़ा मैं कोर्स को इक्वल कर दूंगा। तो आप लोगों के लिए केमिकल बॉन्डिंग से भी क्वेश्चन आएगा वहां पे, ठीक है। तो थोड़ा मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वहां पे अरेंज करूंगा, तो मैं देखूंगा किस तरीके से बच्चे उसको अप्रोच कर रहे हैं, क्वेश्चन को मार्क उनका कैसे आ रहा है। ओके, तो ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन द एग्जाम्स। एग्जाम के अंदर मार्क को पकड़ के रखना चाहो। और मैं दूसरा चीज भी देख रहा हूँ, जो रैंक लिस्ट निकलता है उसमें कोई भी एक बंदे का नाम एकदम मतलब कांस्टेंट नहीं है। मतलब मैं देखता हूँ जो टॉपर लोगों का नाम देखता हूँ वो, और मैं नीचे तो वहाँ पे लिस्ट खोल के नहीं देखता, बस देखता हूँ कि कौन टॉपर हुआ है, कौन सेकंड पोजीशन, इस तरह से थोड़ा मैं देख लेता हूँ थोड़ा। ओके,
लेकिन कोई भी पोजीशन कांस्टेंट नहीं रहता है, और जो भी एक बार लाता है फिर दूसरे बार उसका मार्क घट जाता है। बेटा ध्यान रखो, तुम्हारा मार्क को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करो, मार्क को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करो। जितना मार्क को तुम यहाँ मेंटेन करोगे, फाइनल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी तुम्हारा उतना ही मार्क आएगा। मैं बोल रहा हूँ, यदि तुम एकदम सच्चे मन से एग्जाम को दे रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, कोई बच्चा चाहे तो वो आंसर को देख के भी दे सकता है, लेकिन यदि तुम्हें रिजल्ट चाहिए तो सच्चे मन से एग्जाम को दो। मार्क कम आता है तो खुद को एनालाइज करो, क्यों मार्क कम आ रहा है मेरा, मैंने क्या गलत किया। 11 12 के अंदर जो हो गया छोड़ दो उसको, अभी मेरे को अप्रैल मई के अंदर मेरे को प्रिपेयर करना है, तो मैंने क्या गलत किया इसीलिए मेरे एग्जाम के अंदर मार्क फिर डिक्रीज हो गया। पूरा कॉन्स्टेंटली मार्क को मेंटेन करो, नॉट ओनली इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट में मार्क को मेंटेन करके रखो एकदम एग्जाम के लास्ट तक। जब तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम होगा उससे पहले विद्यासागर क्लासेस का जो लास्ट एग्जाम होगा उसमें भी तुम्हारा उतना मार्क आना चाहिए। तो गारंटी है ये कि जो जिस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है उस एंट्रेंस एग्जाम में भी बैठोगे तो उतना ही नंबर आएगा तुम्हारा। ये एक्सपीरियंस है मेरा, मैं देखता हूँ बच्चे जितने मार्क लाते हैं एग्जाम के अंदर, यदि वो सीरियसली एग्जाम को देते हैं, ठीक है, तो उतना मार्क ही उनका एंट्रेंस में आता है। कोई तुम्हारा वहां पे बढ़ नहीं मार्क जाएगा, तुम सोचोगे अरे हाँ वहां पे बैठ के सीरियसली एग्जाम दे दूंगा। इस एग्जाम को जो सीरियसली नहीं दे रहा है वो उस एग्जाम को भी सीरियसली नहीं दे पाएगा, समझ रहे हो। तो एग्जाम को सीरियसली लो, सीरियसली एग्जाम को दो। कोई भी बंदे का नाम एकदम परफेक्टली नहीं आ रहा है वहां पे, मेंटेन करो अपने मार्क को। ओके, जितना भी एग्जाम हो रहा है मेरे को इतना मार्क मेरे को मेंटेन करके रखना है। यदि मेंटेन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, मेरे से क्या गलती हो रहा है। ओके, तो थोड़ा उसको चीज को देखो। देखो बेटा, तो दिस इज योर मास नंबर, दिस इज योर एटॉमिक नंबर, इस तरीके से हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हमारा जो एटॉमिक नंबर है जेड, जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वेरी गुड, ऑलरेडी मैंने आई थिंक ये चीज बताया हुआ है तुम लोगों को या नहीं बताया है। यस सर बताया है ना। अच्छा, इसलिए मेरे को लगा बताया है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो भी तुम्हारा एटॉमिक नंबर के साथ इक्वल है, दैट इज आल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट देयर इज द टर्म एंड कंडीशन। क्या कंडीशन है सर, एटम न्यूट्रल होना चाहिए, एटम शुड बी न्यूट्रल, एटम शुड बी न्यूट्रल। यदि एटम न्यूट्रल होता है तभी जाके तुम्हारा एटॉमिक नंबर will be equals to the number of electrons। समझ में आया बेटा। यदि वहां पे एटम कोई भी प्लस चार्ज या माइनस चार्ज कैरी कर रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर तुम्हारा एटॉमिक नंबर के साथ इक्वल नहीं होगा। यदि प्लस होता है तो तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन घटाना होगा, यदि माइनस होता है तो तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना होगा नॉर्मल इलेक्ट्रॉन नंबर से। क्लियर, मैं करवाऊंगा क्वेश्चन एक दो करवाऊंगा, सो दैट ऑल विल बी क्लियर, सबको क्लियर हो जाएगा वो चीज। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा मास नंबर। नेक्स्ट देखो मास नंबर। मास नंबर क्या है, व्हाट इज योर मास नंबर। मास नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ अ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब इंडिविजुअली नहीं, दोनों का ऐड करके वो दिखाता है। तो मास नंबर दैट इज योर ए, इट इज इक्वल टू पी प्लस एन। P is your proton, P is your proton and N is your neutron। क्लियर हुआ। किस बंदे को वो समझ में नहीं आया, कौन से स्टूडेंट को यहाँ पे समझ में नहीं आया बेटा, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोल दो, समझा देंगे। एनी डाउट। नो सर। ओके, कोई बात नहीं, किसी को भी डाउट नहीं है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा। मान लो मेरे पास यहाँ पे बोरॉन है, मेरे पास यहाँ पे बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 5, और यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर 11 मान लो। ओके, तो यहाँ पे मेरे को निकाल के दिखाओ इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है। इलेक्ट्रॉन 5, न्यूट्रॉन 6। म्यूट। हाँ,
सो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो हो गया 5, तो उसका मतलब तुम्हारा प्रोटॉन नंबर हो गया 5, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर भी होगा 5, क्योंकि ये एक न्यूट्रल आटम है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ये कैरी नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी एटॉमिक नंबर के साथ इक्वल होगा। और न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालेंगे, हमें पता है मास नंबर जो है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा मास नंबर माइनस प्रोटॉन। समझ में आ रहा है? So that is equal to 11 minus 5, that is equal to how much? 6. The number of neutron is equal to 6. क्लियर हो रहा है? यस सर। यदि मान लो मेरे पास जिंक दिया गया है Zn+2, उसका एटॉमिक नंबर होता है कितना? 30, उसका मास नंबर कितना होता है? 64। तो यहाँ पे यदि आप निकालोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, पहले प्रोटॉन का नंबर कितना हो जाएगा? इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, so 30, and what is about your electron? 28 क्योंकि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 30 होना चाहिए, और यहाँ पे +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेस है, तो 30 - 2 दैट इज इक्वल टू योर 28 इलेक्ट्रॉन। और जो न्यूट्रॉन होगा वो कितना होगा? मास नंबर माइनस प्रोटॉन, मास नंबर दैट इज 64 माइनस 30, so how much? 34। ओके, तो इस तरह से निकाल सकते हो, इस तरह से निकाल सकते हो। Then comes that is your isotope. What is your isotope, beta? Same atomic number, different atomic mass number. Okay, different atomic mass number and same atomic number. Atomic number same, atomic number क्या हो जाएगा बेटा? ये कंसेप्ट बताया था आप लोगों को? यस सर। ये आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडायफर, ये कंप्लीट हो गया था? No sir, सिर्फ आइसोटोप। अच्छा, तो मास नंबर ये हो जाएगा तुम्हारा डिफरेंट, मास नंबर तुम्हारा हो जाएगा डिफरेंट। एग्जाम्पल उठा लो, हाइड्रोजन का 1 1, हाइड्रोजन 2 1, हाइड्रोजन 3 1, इसको भी हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं हम ट्राइसियम, और इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइसियम। ओके, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 2 1, हाइड्रोजन 3 1। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1, यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर 1, लेकिन कहीं पे भी मास नंबर सेम नहीं है, मास नंबर अलग अलग है सबका। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे और भी एक एग्जांपल हो सकता है, दैट इज योर कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इसका भी 3 आइसोटोप्स होते हैं इस तरीके से। ओके, तो ओनली आपको ये जान के रखना है कि आइसोटोप होता क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। एग्जाम के अंदर आपको पेयरिंग में एलिमेंट दे दिया जाएगा, 2 पेयर, मतलब एक पेयर का एलिमेंट दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन में। आपको बोलना है कि उस पेयर में से कौन दोनों आइसोटोप है, बस इतना मालूम होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, यदि मास नंबर डिफरेंट होगा तो उसको आइसोटोप बोलेंगे, दैट मच। ओके, नेक्स्ट आइसोबार। व्हाट इज अबाउट योर आइसोबार? उल्टा, आइसोटोप का सेम उल्टा। मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। Yes, mass number same, but your atomic number different. But your atomic number will be different. तो सेम मास नंबर होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लो आर्गन है, मेरे पास पोटेशियम है, मेरे पास कैल्शियम है, तो आर्गन का मान लो ये हो जाएगा हमारा 40, यहाँ पे हो गया 18, यहाँ पे पोटेशियम का हो गया 40, यहाँ पे हो गया इसका 19, कैल्शियम का हो गया 40, यहाँ पे हो गया इसका 20। तो बेटा देखो तीनों के अंदर यहाँ पे मास नंबर सेम है या नहीं? यस सर। बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, बट एटॉमिक नंबर यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? यस सर। ओके, तो इस तरीके से आपका ये हो गया आइसोबार, बहुत सिंपल चीज है। नेक्स्ट हम चलते हैं आइसोटोन। आइसोटोन, बेटा आइसोटोन क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये जे हमरा एमती भूल कर हबो, देखे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से जो होता है तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोन। मुझे यदि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स। क्लियर बेटा? यस सर।
जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया हाइड्रोजन 3 1, ओके, और यहाँ पे हीलियम 4 2। बेटा दोनों के अंदर न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे भी 2, दोनों में 2 होगा तो ये दोनों आइसोटोन हो गए या नहीं? यस सर। ओके, वैसे मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सिलिकॉन और मेरे को लेना है फास्फोरस। सिलिकॉन यहाँ पे हो गया 14, यहाँ पे हो गया 30, यहाँ पे फास्फोरस हो गया तुम्हारा 15, ये हो गया तुम्हारा 31। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 30 - 14 कितना? 16। यहाँ पे भी 16। तो बेटा ये दोनों भी आइसोटोन होंगे या नहीं? यस सर। ओके, so this is called as your isotones. Next come to your isodiaphore. Isodiaphore, DIAPHERS, isodiaphore। बेटा ये isodiaphore क्या होता है? Atoms having same isotopic number, same isotopic number। आइसोटोपिक नंबर अलग है बेटा, ये आइसोटोप नहीं है, आइसोटोपिक नंबर अलग है। जो एलिमेंट का सेम आइसोटोपिक नंबर होगा उसको हम बोलेंगे आइसोडायाफर। और ये आइसोटोपिक नंबर होता क्या है? आइसोटोपिक नंबर मींस इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो एलिमेंट का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है उसको हम बोलते हैं क्या? आइसोडायाफर। अरे समझ में आया? यस सर। मान लो यहाँ पे मैं लेता हूँ नाइट्रोजन, उसका मान लो एटॉमिक मास हो गया 15, इसका हो गया एटॉमिक नंबर 7। ऑक्सीजन का मैंने ले लिया, मान लो उसका हो गया एटॉमिक मास 17 एंड ये एटॉमिक नंबर 8। तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 8। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 9। ओके, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के अंदर प्रोटॉन का नंबर हो जाएगा 7, यहाँ पे भी प्रोटॉन का नंबर हो जाएगा 8। तो बेटा दोनों के अंदर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का नंबर 1 हो रहा है या नहीं? दोनों के अंदर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का नंबर 1 हो रहा है या नहीं? तो इसको हम आइसोडायाफर बोल सकते हैं। यस सर। अभी दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। मान लो मेरे पास है बोरॉन 11 5 एंड कार्बन 13 6। तो बेटा यहाँ पे प्रोटॉन नंबर हो गया 5, यहाँ पे प्रोटॉन नंबर हो गया 6, न्यूट्रॉन नंबर बन जाएगा मेरा 6, यहाँ पे न्यूट्रॉन बन जाएगा मेरा 7। तो बेटा यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का नंबर दोनों में 1 आ रहा है या नहीं? यस सर। यस सर। क्या हम इस चीज को बोल सकते हैं हमारा ये आइसोडायाफर है? यस सर। यस सर। Okay, so this is about your isodiaphor. Then comes to your isostar. Isostar. So what is about your isostar? Isostar क्या होता है बेटा? Molecules having, लिखो molecules having same number of atoms. Molecules having same number of atoms and also same number of electron and also same number of electron is called as isostar. Clear? जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम का नंबर सेम होगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम होगा उसको हम बोलते हैं आइसोस्टार। बहुत भी अच्छा एग्जांपल ले लूंगा आपके लिए। यहाँ पे मान लो मेरे पास है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और मेरे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेटा ये दोनों मॉलिक्यूल है या एटम? मॉलिक्यूल है। तो अरे मॉलिक्यूल है एटम है ये? यस सर, मॉलिक्यूल है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा बोलो? एक नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। तो 2 नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 14। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के इलेक्ट्रॉन है 6, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है 8। तो 8 + 6 = 14 या नहीं? अरे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो उसका इलेक्ट्रॉन भी 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो उसका इलेक्ट्रॉन भी 8। तो 8 + 6 = 14 या नहीं? यस सर। तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम। अभी एटम का नंबर देखो, यहाँ पे एटम कितना है? 2 नाइट्रोजन एटम, तो एटम नंबर 2। यहाँ पे एटम का नंबर कितना है? 2। एक कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, तो 2 एटम है या नहीं?
तो एटम का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर दोनों सेम है या नहीं? Yes, sir. That is called as your iso electronic species. ओके सॉरी, इसको बोलेंगे नेक्स्ट में, लेकिन इन दोनों को हम यहाँ पे आइसो स्टोर बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि इन दोनों में एटम का नंबर सेम है और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Then write Yes, down sir. isoelectronic. Then write down isoelectronic species. Isoelectronic species. तो ये isoelectronic species क्या होता है? Same number of electrons. Same number of different mass electron. number. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन, ये आइसो इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं? इसमें भी Yes, इलेक्ट्रॉन sir. 14 था, इसमें Yes, भी sir. इलेक्ट्रॉन 14 था, तो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो गए या नहीं? Yes, sir. Okay, so that is called as your isoelectronic species. Okay, so this is the different types of things: isotone, your isodiapher, isobar, isotope, isostar, isoelectronic, और दूसरा आइसो रह गया वो है आइसोमर। तो आइसोमर